Students, we are attending rotational motion. Lecture number 5. बच्चों, लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने डेरिवेशन किया था फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम and after that perpendicular axis theorem. बच्चों, as per parallel axis theorem we say like this: I naught is equals to IC plus m times of h square, while perpendicular axis theorem looks like moment of inertia about z axis has to be equals to Ix plus Iy, Ix moment of inertia with respect to x axis, Iy moment of inertia with respect to y axis. स्टूडेंट्स, ये सबका हमने प्रूव किया हुआ है एंड हाँ, इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इन दोनों का कलेक्टिव एप्लीकेशन भी तो करना स्टार्ट किया. ऑलराइट, आई थिंक सबसे पहले हमने रिंग के साथ हमारा जो डिस्कशन है वो स्टार्ट किया. बच्चों, in case of ring, total I think we have seen 4 possibilities. So in case of a ring, students, the 4 possibilities will be looking like: A, moment of inertia of a ring about an axis passing through the center and perpendicular to the plane. So इसको हम IC कह सकते हैं. IC is equals to mr square. बच्चों, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है central axis of rotation. So for the ring moment of inertia about an axis passing through the center and perpendicular to its plane is mr square. B. Now students, we have to think about moment of inertia of ring about an axis passing through its diameter. So if this is that particular ring, इसका जो diameter है उसको हम बना देते हैं axis of rotation. So moment of inertia about this particular diameter ID will be 1/2 mr square. Okay, ये हो गया सेंट्रल के लिए एंड अबाउट द डायामीटर. नाउ इन पार्ट सी बच्चों ऑफ रिंग, व्हाट वी कैन डू, we can think about moment of inertia about an axis passing through the tangent and perpendicular to its plane. ये लो बेटा, आपने यहाँ पे एक रिंग कंसीडर किया. If there is a tangent which is perpendicular to the plane becomes the axis of rotation. So that particular moment of inertia IT will be given by 2mr square. Moment of inertia about an axis passing through the tangent and perpendicular to its plane is 2mr square. Then task D बच्चों, यहाँ पर भी तो tangent होगा. याद है स्टूडेंट्स आपको सी एंड डी के टेंजेंट में डिफरेंस क्या होगा? इन सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी हैव फाउंड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. यस, यहाँ पर होगा बच्चों पासिंग थ्रू टेंजेंट बट विद इन द प्लेन. प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं, विद इन द प्लेन, इन द प्लेन इटसेल्फ बच्चों. सो कैन आई से दैट इज ITP. T for tangent, P for within the plane. So ITP will be equals to 3/2 mr square. So students, यहीं पे तो हमने यूज किया था हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. मैं आपको अच्छा सा बैकअप दे रहा हूँ सो दैट व्हेन वी गो फॉर न्यूमेरिकल्स आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े बच्चों.
रिंग के बाद डिस्क पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स. So next task is we have to focus on disk. Okay. Case A students. We are going to consider a disk over here बच्चों. Okay. पूरा solid है that means. And हम यहाँ पर consider कर लेते हैं उसका axis of rotation. So I'm talking about बच्चों central axis of rotation. ये लो बेटा central axis of rotation. And that central axis of rotation will be IC. So IC students will be equals to याद है आपको 1/2 mr square students. Moment of inertia of disk about an axis passing through the center and perpendicular to its plane is half mr square. Then B बच्चों इसके लिए आप डायामीटर सोचेंगे. About an axis, moment of inertia of disk about an axis passing through center, but this time the diameter is the axis of rotation. So that particular moment of inertia ID will be half of 1/2 mr square. That will give you 1/4 mr square students. टास्क सी इसके बाद tangent perpendicular to the plane and ये हो जाता है. तो टास्क डी बच्चों tangent but within the plane ITP. चलो IT देख लो बेटा. IT T for tangent बच्चों perpendicular to the plane that will be given by 3/2 mr square and after that tangent in the plane होगा बच्चा लोग. So it will be 5/4 mr square. Okay students. तो देखो बेटा लास्ट के 10 मिनट में जो नॉलेज हमने आपके साथ शेयर किया उसमें कुछ भी नया नहीं था. मैं आपको ये बता रहा था हमने लास्ट टाइम क्या क्या स्टडी किया. पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का डेरिवेशन. ओके. एंड इसको कैसे अप्लाई करना है उसके लिए हमने रिंग एंड डिस्क का एग्जांपल लिया. नाउ आई थिंक वी कैन स्टार्ट विथ समथिंग न्यू. बच्चों अभी हमारे पास है आपके लिए moment of inertia of rod about an axis. Number A, or I should say part A, passing through center and perpendicular to its length. Then B बच्चा लोग next task, moment of inertia of rod about an axis passing through one of its end and perpendicular to its length. Okay, then you can think about one more बच्चों. Moment of inertia of rod about an axis passing through midpoint of center. Statement जरा ध्यान से बच्चों. Midpoint of center and its end. So we have this now. Moment of inertia of rod about an axis passing through center and perpendicular to its length, then passing through one of its end and perpendicular to its length. Then C students passing through midpoint of center of the rod and its end. Okay, so we can do one thing students. हम लोग यहाँ पर रॉड का एक 2 डायमेंशनल व्यू कंसिडर कर लेते हैं सबसे पहले. तो ये लीजिए ना बच्चों. Okay, let's say guys the total length of the rod is L. Now what you have to do is आप ठीक बीचों बीच से एक लाइन पास करिए स्टूडेंट्स
and you find out moment of inertia about central axis of rotation. Yes, bachcho, I see it is. Can I say I see, students? I see moment of inertia of rod about an axis passing through center and perpendicular to its length. I see will be ml square by 12. स्टूडेंट्स मैं रेकमेंड करूंगा आप उसे फिलहाल डायरेक्टली याद रखिए. आई सी विल बी एम एल स्क्वायर बाई 12. इसको याद रखिए. आप दूसरा प्रूव कर सकते हो बच्चों. अगर आपको याद है ना, लास्ट टू लास्ट सेशन में हम जब आपको सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम का बेसिक नॉलेज दे रहे थे, तब हमने ये वैल्यू आपको प्रूव करके दिखाया था. बट अभी हमारा प्रॉपर ऑर्डर इसी में रहेगा दैट आप इसे डायरेक्टली याद रखें एम एल स्क्वायर बाई 12 एंड इसको यूज करके आप दूसरे जो फॉर्मूले है उसे डिराइव करिए. ये एक आइडियल चीज होती है करने के लिए. So moment of inertia of rod about an axis passing through center and perpendicular to its length IC will be ml square by 12 बच्चों. अब इसके बाद आप क्या करिए, वन मोर टाइम यू ड्रॉ दैट रॉड बच्चों, 2D व्यू ऑफ दैट रॉड. ओके, किसी भी एक एंड से पास होता हुआ आप ड्रॉ कर दीजिए प्लीज एक्सेस ऑफ रोटेशन. बच्चों ये लीजिए, दिस इज द न्यू एक्सेस ऑफ रोटेशन जो मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ. Let's say that particular moment of inertia is I naught, जो एक्चुअली आपको डिटरमाइन करना है about central axis. बच्चों जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना दैट विल बी आई सी. ओके, तो अभी आप क्या करिए ना स्टूडेंट्स, अभी आप दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस मुझे बता दीजिए. कैन आई से आई नॉट इज एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड एंड जो IC है वो तो सेंट्रल एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. सो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस होगा वो होगा टोटल लेंथ का हाफ. मतलब टोटल लेंथ इज L, सो हाफ ऑफ L विल गिव यू L बाई 2. ठीक है स्टूडेंट्स. अब बच्चों आपने देखा, हाँ कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि टीचर क्या हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे. सो माय आंसर इज यस स्टूडेंट्स. आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस ऑलरेडी आपके पास है. ठीक है, कैन आई से यू हैव टू डिटरमाइन आई नॉट बच्चों. सो कैन आई से दोनों एक्सिस पैरेलल है, सेंट्रल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड, दोनों एक्सिस पैरेलल है. बिल्कुल सर. सो स्टूडेंट्स एज पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एज पर बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं आई नॉट के बारे में. टेल मी, आई नॉट विल बी आई सी प्लस एम एच स्क्वायर. आई नॉट इज योर रिक्वायरमेंट, सो दैट इज आई सी बच्चों. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस इज एम एल स्क्वायर बाई 12. ओके, प्लस m इंटू एच का स्क्वायर बच्चों, h का स्क्वायर. h एक्चुअली होने वाला है दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. प्लीज लुक एट द डायग्राम केयरफुली. कैन आई से आई नॉट एंड आई सी वाले जो दोनों पैरेलल एक्सिस है उनके बीच जो डिस्टेंस है बच्चों वो L बाई 2 है. ओके, टोटल किया जाए बच्चा लोग, एम एल स्क्वायर बाई 12 कॉपी पेस्ट प्लस एम एल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर विल गिव यू 4. ठीक है ना बच्चों. सो एक काम हो सकता है, आप इसको लिख सकते थे आई नॉट स्टूडेंट देयरफॉर आई नॉट इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई 12. ओके, प्लस प्लस बच्चों एम एल स्क्वायर बाई 4. कैन आई से एम एल स्क्वायर बाई 4 is 3 times of ml square divided by 12. Okay, so I naught you will be getting guys 12 कॉमन ले लीजिए, ml square कॉमन ले लीजिए, 1 plus 3 will give you 4. So the required value of I naught should be 4 into 3 will give you 12 बच्चों. So it will be ml square by 3. स्टूडेंट्स ये हमने प्रूफ आपको करवाया था है ना. मैं उस सेशन की बात कर रहा हूँ जब हमने आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बताया था. याद करिए, 3 डेंसिटीज होते हैं ना स्टूडेंट्स, लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी एंड वॉल्यूम डेंसिटी. लीनियर डेंसिटी लैम्डा का यूज करके हमने आपको ये पहले ही प्रूफ करवा दिया है स्टूडेंट्स, एम एल स्क्वायर बाई 3. बट आज अभी प्रूफ करने का तरीका द वे वॉज कंप्लीटली डिफरेंट. आज हमने यूज किया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ओके बच्चों,
सी टास्क मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, मतलब अभी moment of inertia of rod again, but this time about an axis passing through midpoint of a center and its end students आप एक काम करिए, आप ये लीजिए, आप एक रॉड का 2D व्यू कंसीडर कर लीजिए, कर लिया, सेंट्रल एक्सिस बनाइए, ये लीजिए बच्चों सेंट्रल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस का नाम क्या होगा, आईसी। ओके, अब स्टेटमेंट ध्यान से देखा तुम लोगों ने, पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ सेंटर एंड एंड, बच्चों सेंटर देखिए एंड देखिए, सेंटर एंड के नहीं, सेंटर एंड एंड के ठीक बीचों बीच एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाइए। लेट्स से the required moment of inertia for this particular axis of rotation is I naught. Okay, students. Now, can I say like this? In between I naught and IC wala axis of rotation, the distance is even half of L by 2. That is, bacho, L by 4 it is. Yes, students. So by using our favorite parallel axis theorem. Okay. So students, by using our parallel axis theorem, हम कह सकते हैं we are already having the formula for IC. Using IC, we have to determine I naught. So I naught will be IC plus mh square. What about IC, students? Moment of inertia about central axis of rotation is ml square by 12. अच्छा, plus m into h का स्क्वायर। इस बार आप ही बताइए स्टूडेंट्स, h क्या लेना है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसे ही h लेना है। एम आई राइट गाइस? सो कैन आई से इट विल बी l by 4। सॉल्व करिए ना स्टूडेंट्स आगे और मुझे बता दीजिए क्या मिल रहा है आपको, फिर बात करते हैं हम लोग साथ में। I naught will be, students, ml square by 12 plus ml square divided by 4 square आपको 16 दे देगा। ठीक है, चलो एक काम करो स्टूडेंट्स, आप I naught को ऐसे लिख दो, ml square divided by 4 you have taken common, so inside the bracket it is 1 upon 3 because 4 into 3 will give you 12 plus बच्चों 1 upon 4 because 4 into 4 will give you 16. So I naught will be, students, ml square by 4 multiplied by 4 into 1 4 plus 3 into 1 3, so 4 plus 3 7 guys, divided by it is 3 into 4 will give you 12. So overall आप लोगों को I naught मिलने वाला है ml square, नहीं आप 7 पहले लिख सकते थे, I naught आपको मिलेगा स्टूडेंट्स 7 divided by 4 into 12 is 48. So 7 divided by 48 ml square. ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है। सो टोटल वी हैव 3 डिफरेंट फॉर्मूले जो मैं रेकमेंड करूंगा आप डायरेक्टली मेमोराइज ही कर लीजिए स्टूडेंट्स, for smooth functioning of the entire rotational motion. Moment of inertia of rod about an axis passing through center and perpendicular to its length IC will be ml square by 12. Then moment of inertia of rod about an axis passing through one of the end बच्चों and perpendicular to length will be ml square by 3. And at last moment of inertia of rod about an axis passing through midpoint of center and its end I naught will be 7 by 48 times of ml square. बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके, देखो बेटा अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आपको ले जाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का अच्छा खासा एप्लीकेशन हम लोगों ने कवर कर लिया है ऑलरेडी स्टूडेंट्स। सो नाउ आई थिंक द टाइमिंग इज परफेक्ट, ओके, टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। स्टूडेंट्स हेडिंग डालिए ना, मेरे साथ रहिए आप, इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन।
which is usually denoted by K. Okay. So स्टूडेंट्स सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन आपको बता दें. ओके. रेडियस ऑफ गायरेशन, इट्स लेंदी बट इट्स कॉन्सेप्चुअल. स्टेप वाइज करेंगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा स्टूडेंट्स. रेडियस ऑफ गायरेशन, और सिंपली दिस इज कॉल्ड एज गाय रेडियस of a body about an axis of rotation is defined as the radial distance of a point from the axis of rotation at which, if the whole mass of the body is assumed to be concentrated, its moment of inertia, mi, about the given axis would be the same at with its actual distribution of mass. लुक्स लेंदी, राइट बच्चों? जैसा कि हम जानते हैं कॉन्सेप्चुअल है, स्टेप वाइज करेंगे इसको अच्छे से. पहले तो हम रीड करेंगे एटलीस्ट ट्वाइस, एटलीस्ट स्टूडेंट्स. चलिए. रेडियस ऑफ गायरेशन, या फिर शॉर्ट में हम इसे कहते हैं गाय रेडियस ऑफ अ बॉडी about an axis of rotation is defined as the radial distance of a point from the axis of rotation at which whole mass of the body you are assuming to be concentrated, its moment of inertia about the given axis would be the same at with its actual distribution of mass. Okay, so moment of inertia should remain the same. Moment of inertia should remain the same. But first of all हमें करना क्या है बच्चों? मैं एक काम करूं, मैं ये डेफिनेशन आपको एक डिस्क के एग्जांपल से समझाऊं. ये लीजिए बच्चों. मैंने ले लिया येलो फॉन्ट. आप मेरे साथ एक फिगर ड्रॉ करिए स्टूडेंट्स. डिस्क वाला फिगर ड्रॉ करिए ना प्लीज मेरे साथ बच्चों. ये लीजिए. सो वी कैन डू वन थिंग नाउ. बच्चों ये जो डिस्क आपने कंसीडर किया है, you consider that its radius is r. Okay, this is your example number 1 बच्चों. For understanding radius of gyration, there is a disk whose mass is m बच्चों, entire mass is m, and moment of inertia about central axis we know ic is half mr square, या फिर आप इसे कह सकते हो mr square by 2, half mr square, या फिर आप इसे कह सकते हो बच्चों mr square by 2. ic is equals to mr square by 2. सब ठीक है. Now what you have to do is बच्चों,
ये जो पूरा डिस्क है, पूरा कहा मैंने, कैन आई से इट्स एंटायर मास इज m. नाउ व्हाट वी हैव टू डू बच्चों, आप एक पॉइंट मास कंसीडर करिए ना. ओके, कैन आई से पूरे डिस्क का जो मास है वो m है. यही सेम मास आपके पॉइंट मास का होना चाहिए स्टूडेंट्स. नाउ दैट इज द रूल. सो एंटायर डिस्क इज एक्चुअली रिप्लेस बाय अ पॉइंट मास. बात तो वैसी हो गई. अब आप एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बना सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, एंड यू कैन ड्रॉ आर्क फॉर रोटेशन. ये लो बच्चों, ये लो, आर्क फॉर रोटेशन. इज दैट फाइन स्टूडेंट्स? यहाँ पर आप ड्रॉ कर लीजिए उसका सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टूडेंट्स. दिस टाइम कैन आई से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसका बेसिक फॉर्मूला होने वाला है मास मल्टीप्लाइड बाय ये जो आपने सर्कुलर मोशन पार्टिकल को परफॉर्म करते हुए दिखाया है, कैन आई से उसका एक रेडियस होगा. वो सर्कुलर मोशन का एक रेडियस होगा, राइट. सो बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन से होते हुए ए ओ आर, राइट, एक्सिस ऑफ रोटेशन से होते हुए पॉइंट मास m का जो डिस्टेंस है ना बेटा, यू कंसिडर दैट एज रेडियस r. ओके, सॉरी माय मिस्टेक, आई शुड से रेडियस k बच्चों, क्योंकि हम रेडियस ऑफ गायरेशन डिफाइन कर रहे हैं. तो बच्चों अब होगा क्या, हम लोग ये जो राइट वाला डायग्राम है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला यूज करें. इट इज मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर. मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर. सो पॉइंट मास का मास इज m and the perpendicular distance between axis of rotation and point mass is k, right. So it has to be mk square, mk square. तो बच्चों ये जो m आपने कंसीडर किया है, दिस इज एक्चुअली पॉइंट मास. तो सर इसका फायदा क्या होगा बच्चों, इसका फायदा ये होगा दैट दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम है ना. यस. सो आप कह सकते हो सिंस द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आर सेम, mk square will be replaced by mr square by 2. मास तो वही है बच्चों, तो मास को आप कैंसिल कर सकते हैं. you'll be getting k square is equals to r square divided by 2. now let's take square root on both sides बच्चा लो. so we get k is equals to r divided by root 3. and students ये फॉर्मूला में जो आप लोगों को k दिख रहा है, this k is nothing but radius of gyration. मैंने कहा this k is nothing but radius of gyration students. so for a disk बच्चों radius of gyration क्या होगा, r by root 2. this is for a disk. so you consider entire body बच्चों, ठीक है, उसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढिए, कितना कर पाओगे. फिर यही सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा नेक्स्ट केस में. नेक्स्ट केस में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिप्लेस एंटायर बॉडी बाय अ पॉइंट मास. एंड वो पॉइंट मास के पास से आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाओगे. तो जो रेडियस होगा ना बच्चों सर्कुलर मोशन का, वो के होगा. सो बेसिकली यही के को तो हम नाम दे रहे हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट बच्चों. And we know that the two moment of inertia should be numerically same, तो आप दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वेट करिए. m k square mass into radius of gyration का square will give you moment of inertia of disk about central axis will be mr square by 2. सॉल्व करिए, मास कैंसल. सो k square is r square by 2. स्क्वायर रूट ले लीजिए, सो k will be r by root 2. Okay, I think once again I should show you that definition of radius of gyration. ये लो बेटा, radius of gyration students, or radius of a body about an axis of rotation, is defined as the radial distance. बच्चों radial distance ना, क्योंकि वो जो आप सर्कुलर मोशन अज्यूम कर रहे थे उसके रेडियस को ही तो हमने नाम दे दिया रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट. So radius of gyration or guy radius of a body about an axis of rotation is defined as the radial distance of a point from the axis of rotation at which whole mass of the body is assumed to be concentrated. Yes, whole mass बच्चों याद करिए, डिस्क का एंटायर मास m, वो जो पॉइंट मास था राइट में उसका अकेले का मास m, then its moment of inertia about the given axis would be the same at with its
एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बच्चों, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। एक काम करिए स्टूडेंट्स, आप सेकेंड एग्जाम्पल कंसीडर करिए, रेडी हो जाइए। सो डिस्क आपने लिया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल आई थिंक रॉड सही रहेगा बच्चों, रॉड। आप एक काम करिए, आप ये रॉड का एक बेसिक डायग्राम बनाइए बच्चों मेरे साथ, डू दिस टास्क क्विकली, यस। सो हमने क्या किया, हमने ये लीजिए एक रॉड ड्रॉ कर दिया बच्चों, उसके ठीक बीचों बीच से पास हो रहा है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों आई सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी। आपको याद है बच्चों, रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ कितना होता है, इज इट ml²/12 बच्चों। अब आप क्या करिए, जो रॉड है उसका टोटल मास आपने m लिया है, ठीक है। आप एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाइए स्टूडेंट्स, इसके अराउंड आप एक पॉइंट मास को ऑर्बिट करता हुआ दिखाइए, एम आई राइट बच्चों। नाउ द रूल इज, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लास्ट टाइम मिला था वही से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बार मिलना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला विल बी mk²। सो m इज बच्चों ये पॉइंट मास का मास इनटू k इज नथिंग बट रेडियस ऑफ गायरेशन। जो एक्चुअली बच्चों यहाँ पे ये जो हमने पॉइंट मास कंसिडर किया है ना, वो जो ऑर्बिट कर रहा है उसका रेडियस है बच्चों सर्कुलर मोशन का के, वही होने वाला है रेडियस ऑफ गायरेशन। इज दैट फाइन स्टूडेंट्स? So for the entire rod, how much is the mass? M. For the point mass, how much is the mass? M. For rod central axis moment of inertia IC, ml²/12. And then बच्चों moment of inertia for that point mass is mk². And the rule is दोनों moment of inertia जो है वो equal होने चाहिए बेटा। मतलब mk² should match with ml²/12। अच्छा, कैंसिल, सो यू गेट k² इज इक्वल्स टू l² डिवाइड बाई 12। चलो स्क्वायर रूट ले लो ना बेटा, सो k विल बी इक्वल्स टू l डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 12, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो k विल बी l डिवाइड बाय रूट 12। सो ये लीजिए, ये आपको मिल गया रॉड के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन बच्चों। सो k विल बी l डिवाइडेड बाय रूट 12, k विल बी l डिवाइडेड बाय रूट 12। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ सकते हैं अभी। स्टूडेंट्स, ये हमने आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन एक्सप्लेन किया, एंड आई थिंक वी टुक 2 एग्जांपल, सफिशिएंट है ना बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है पूरे स्ट्रक्चर का, ओके। देन वही पूरे स्ट्रक्चर का जो मास है वो मास आप पॉइंट मास का दे दीजिए अभी, एंड जो वो रोटेट करने वाला है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका जो रेडियस है उसको आप के ले लीजिए। और डेफिनेशन कहता है ये के को ही हम नाम दे रहे हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स एक काम करेंगे, हम अभी ये रेडियस ऑफ गायरेशन का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। ओके, सो वी डू वन थिंग स्टूडेंट्स, हम लोग एक रिंग एंड एक डिस्क के रेडियस ऑफ गायरेशन को कंपेयर करने जा रहे हैं। ओके, हम लोग एक रिंग एंड एक डिस्क के रेडियस ऑफ गायरेशन को कंपेयर करने जा रहे हैं। सो वी डू वन थिंग स्टूडेंट्स, we can consider this as a note first of all. Point number 1 students, we are focusing on ring right now. Moment of inertia of a ring about an axis passing through its center and perpendicular to its plane IR will be mr²। okay बच्चों, now as per the definition for radius of gyration, same moment of inertia आप assume करोगे while defining radius of gyration। so यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा mk²। व्हाट इज के? रेडियस ऑफ गायरेशन, किसके लिए? रिंग के लिए। तो क्यों ना हम सबस्क्रिप्ट में r लिख दे बच्चों। सो मास कैंसल हो जाएगा, आपको मिलेगा r² इज इक्वल्स टू kr²। ओके बच्चों, चलो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो स्टूडेंट्स।
So you will be getting kr is equals to r. दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो बेटा, ठीक है. सो kr is equals to r. kr is equals to r. So for the ring आपको मिला रेडियस ऑफ गायरेशन kr is equals to r. रिंग हुआ. अब हमने प्लान किया था स्टूडेंट्स दैट हम रिंग को डिस्क के साथ कंपेयर करेंगे. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट्स ऑफ अ डिस्क आईडी ले लीजिए अबाउट सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी 1/2 mr square. Now that is equals to students basic formula for moment of inertia बताइए mk square. k is radius of gyration and over here this should be kd ना बेटा, d for diameter है, सॉरी डी फॉर डिस्क है बच्चों. सो एम के स्क्वायर और फिर के को के डी से रिप्लेस कर लो. सो आई थिंक मास कैंसल हो जाएगा. आपको मिलेगा बच्चों 1/2 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के डी स्क्वायर. चलिए दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लीजिए स्टूडेंट्स. सो आई थिंक विल बी गेटिंग के डी इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय √2. स्टूडेंट्स ये लीजिए के डी विल बी आर डिवाइडेड बाय √2. सो कैन आई से इससे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे r बड़ा है कंपैरेटिवली, जो r/√2 है वो छोटा है. सो माय कंपैरिजन इज स्टूडेंट्स k फॉर डिस्क इज लेस एज कंपेयर टू k फॉर r. d फॉर डिस्क, r फॉर रिंग, d फॉर डिस्क, r फॉर रिंग बच्चों. सो रिंग के लिए जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो सबसे बड़ा है बच्चों. ओके सो एक काम करेंगे स्टूडेंट्स, हाँ क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ बच्चों के हमने एक्चुअली दोनों का रेडियस तो सेम लिया है बेटा. देखिए ना रिंग के लिए आपने फॉर्मूला क्या है उसका फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर. डिस्क के लिए आपने फॉर्मूला 1/2 mr स्क्वायर यूज किया. तो आपको ये पता चला कि दोनों का रेडियस टीचर ने सेम लिया r. बट फिर भी दोनों का जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो सेम नहीं है बच्चों. कहना इसे डिस्क में पूरा जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द डिस्क इन कंटिन्यूअस फॉर्म. बट रिंग में कैसा है ना बच्चों, रिंग एंटायर मास बच्चों रिंग में कैसा है, एंटायर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट सम डिस्टेंस व्हिच इज द रेडियस, राइट. सो दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स हमेशा आपको रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा ही मिलेगा. सो एक कंक्लूजन मुझे जो ड्रॉ करके आपको दिखाना है बच्चों वो ये है दैट रेडियस ऑफ गायरेशन स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ गायरेशन हम जिसे k से डिनोट करने वाले हैं, ओके, इज डिसाइडेड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. ओके रेडियस ऑफ गायरेशन k इज डिसाइडेड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. बच्चों डिस्क देखो ना, डिस्क के लिए मास थ्रू आउट द सॉलिड है, रिंग के लिए मास तो पूरा रेडियस r पे सिचुएटेड है, राइट. सो फॉर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस विल बी गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. एग्जांपल आपके सामने है. फॉर अ रिंग रेडियस ऑफ गायरेशन इज r, बट फॉर अ डिस्क रेडियस ऑफ गायरेशन इज r डिवाइड बाय √2. तो एक काम करिए ना बेटा, हम एक स्टेटमेंट और डाल दें यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए रिलेटेड टू रेडियस ऑफ गायरेशन. स्टूडेंट्स ये लीजिए among any objects of same mass, any object बच्चों of same mass and same radius, it is same mass and same radius. हम आगे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स रिंग के बारे में. रिंग has the largest radius of gyration. रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन का जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा बड़ा रहेगा बच्चों. एंड हेंस एक ऑब्वियस सी बात ले लेते हैं बच्चों, एंड हेंस मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो टू गेट मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू शुड गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. वो रिंग के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है बेटा. मैंने मैक्सिमम कहा बेटा, प्लीज बी अ गुड लिसनर. मैक्सिमम, तब तक मैं अच्छे से ये हाईलाइट कर लूं बच्चों. there is a ring same radius, okay, so there is a ring, okay, and hence it is going to show maximum moment of inertia. There is a ring, it is going to show maximum moment of inertia because
उसका रेडियस ऑफ गायरेशन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि मास बच्चों पूरे बॉडी में तो है ही नहीं, जितना भी मास है पूरा का पूरा रेडियस आर जितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है। फिनिश करिए बच्चों ये। Then next point is students, related to angular momentum। बच्चों आपको एंगुलर मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला याद है? एल वेक्टर एंगुलर मोमेंटम। यस स्टूडेंट्स, बिकॉज अगर आपको वो याद है ना, सो हम वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मुझे आपको फिर वो थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी दिखाना है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम। एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे तो हम बाद में जाएंगे, पहले आप बताइए ना बच्चों, फॉर एंगुलर मोमेंटम आपका सिंबल एल वेक्टर होगा, एल वेक्टर सिंबल होगा बेटा। एल वेक्टर एल वेक्टर एल वेक्टर इज एंगुलर मोमेंटम बच्चों। सो एल वेक्टर एंगुलर मोमेंटम विल बी आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आई थिंक फॉर्मूला आपने देखा है बच्चों, एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ओके, ओवर हियर स्टूडेंट्स ये जो पी वेक्टर आपको सामने दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मोमेंटम। सर कौन सा वाला बच्चों? इट हैज टू बी लीनियर मोमेंटम। सो पी वेक्टर इज लीनियर मोमेंटम। व्हाट अबाउट एल वेक्टर? एंगुलर मोमेंटम स्टूडेंट्स। आर वेक्टर को फिलहाल अगर आप रेडियस वेक्टर बोलोगे तो भी चलेगा, बट अगर आपको एक्चुअल नेमिंग में जाना है तो आप आर वेक्टर को लिख सकते हो बच्चों, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये समझना है बेटा आपको, position vector students from the axis of rotation। एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट का जो पोजीशन होगा बच्चों, यस ओके, उनके बीच जो डिस्टेंस होगा ना स्टूडेंट्स, दैट डिस्टेंस इज आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज आर वेक्टर एक्चुअली कॉल्ड एज बच्चों? आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मूला कैसा है एंगुलर मोमेंटम का? एल वेक्टर इज इक्वल्स टू, यस, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। चलिए डेरिवेटिव लेने से ही स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ वी नो द फॉर्मूला फॉर एल वेक्टर एटलीस्ट। एल वेक्टर इज बच्चों आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। एल वेक्टर इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। बच्चों एक काम करिए, डेरिवेटिव लीजिए ना, इसका डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन करिए। मैं फॉर मे बी सम टाइम, मे बी फॉर फ्यू सेकेंड्स मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ, जैसे एक्सक्यूज मी फॉर अ वाइल। तब तक आप लोग डेरिवेटिव लेके मुझे बता दीजिए क्या आंसर मिलेगा। गिव मी फ्यू सेकेंड्स। हाँ बच्चों, लिया डेरिवेटिव। एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एल वेक्टर इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ओके चलो डेरिवेटिव लेते हैं साथ में। जिन्होंने ले लिया है डेरिवेटिव वो चेक करेंगे उनका स्टेप सही है या नहीं। चलो स्टार्ट करें बच्चों।
सो हाँ, डिफरेंशिएशन हमें करना है with respect to time, students. So we are going to differentiate for sure with respect to time. बच्चों डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, टाइम यानी स्मॉल टी. सो एल वेक्टर का डेरिवेटिव विल लुक लाइक डी एल वेक्टर बाय डी टी इज इक्वल्स टू, लुक एट राइट हैंड साइड प्लीज, इट इज लाइक डी बाई डी टी ऑफ बच्चा लोग आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर. सब ठीक है. आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर का डेरिवेटिव राइट हैंड साइड में बच्चों. So dl vector by dt will give you d by dt of r vector cross p vector. स्टूडेंट्स पता है आपके मैथमेटिक्स पार्ट 2 में आप लोग वो डेरिवेटिव का u इंटू वी फॉर्मूला पढ़ते हो. डिफरेंशिएशन फॉर u इंटू वी. u इज अ वेरिएबल, v इज ऑल्सो अ वेरिएबल. हाउ डू वी डिफरेंशिएट बच्चों u v? हम ऐसा बोलेंगे ना, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. देखो ना बच्चों, अगर मैं आपको हिंट लिख के देना चाहूँ, सो इट शुड बी लाइक दिस. इफ आई गिव यू d ऑफ uv बच्चों, इसका मतलब होता है u डेरिवेटिव ऑफ v dv प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u विच इज du बच्चों. So derivative of u into v will give you u. Derivative of v plus v derivative of u. Derivative of u into v beta u. Derivative of v plus v derivative of u. Now I think you can apply with confidence, guys. Left hand side dl vector by dt as it is. We don't have any problem with left hand side. चलो राइट हैंड साइड आ जाइए बच्चों. d बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर क्रॉस p वेक्टर. सो फर्स्ट टर्म r वेक्टर एज इट इज क्रॉस प्रोडक्ट विद डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म दैट इज dp वेक्टर बाय dt. इन बिटवीन प्लस का साइन आएगा. p वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद स्टूडेंट्स dr वेक्टर बाय dt. ठीक है ना स्टूडेंट्स. चलो सो हमारे पास अभी लेफ्ट हैंड साइड में है dl बाय dt. ये लो बच्चों dl बाय dt, dl वेक्टर बाय dt दैट इज इक्वल्स टू r वेक्टर एज इट इज स्टूडेंट्स. ओके, क्रॉस प्रोडक्ट विद स्टूडेंट्स आप ही बताइए ना, dp वेक्टर बाय dt दिस इज लाइक rate of change of linear momentum with time. Students, rate of change of linear momentum with time is nothing but force, यानी f vector. Now this is as per Newton's second law of motion बच्चों. I can give you hint. As per Newton's second law of motion, f vector is rate of change of linear momentum dp by dt बच्चों. मतलब ठीक है, इन बिटवीन प्लस का साइन आप एज इट इज लिखिए. p vector as it is. स्टूडेंट्स आप ही बताइए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑल्सो एज इट इज dr vector by dt. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना बच्चों, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. हमने डेरिवेटिव कैसे लिया, r वेक्टर क्रॉस dp by dt. ओके ओके ओके, सो एक काम करते हैं ना बच्चों, हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना, हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, राइट. सो पहले हमें r वाला टर्म लिखना पड़ेगा. तो मैं लिख तो वही रहा हूं, मैं पर्पसली जो ऑर्डर है उसे शफल कर रहा हूं बच्चों. आपने क्या लिखा था राइट हैंड साइड में, आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डीपी बाई डी टी प्लस स्टूडेंट्स आपको एक्चुअली यहाँ लिखना चाहिए था आगे अभी डीपी वेक्टर बाई डी टी. आई शुड यूज ब्लैक. हाँ बच्चों, क्या कह रहा था मैं आपसे, मैं आपसे कह रहा था पी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डी आर वेक्टर. नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों, पहले हमें आर वाला टर्म चाहिए, राइट. सो प्लस डी आर वेक्टर बाई डी टी cross product with बच्चों p vector as it is. Now I think this is perfect for you बच्चों, perfect perfect perfect. I will tell you the reason बच्चों. आप देख सकते हैं हमने क्रॉस प्रोडक्ट ढूंढा है, ओके, एंड आई थिंक आई कैन गिव यू वन मोर हिंट बच्चों, वन मोर हिंट. यस, क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ बच्चों. क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ. दैट बेसिकली मीन्स आप जब टर्म्स को शफल करोगे
तो वेक्टर का वैल्यू मुझे कहना चाहिए वेक्टर चेंज हो जाएगा। समझिएगा बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट है तो पहले आर वेक्टर वाले टर्म्स आएंगे, बाद में पी वेक्टर वाले। अभी एकदम सही है। सो वी कैन ट्राई वन मोर टाइम। dl by dt लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म आर वेक्टर एज इट इज, क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों किसके साथ, dp by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स, प्लस बच्चों आप क्या प्लान कर रहे थे मुझे बताइए, dr वेक्टर बाई dt ना, dr वेक्टर बाई dt, बताइए ना बेटा, dr वेक्टर बाई dt क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज नथिंग बट लीनियर वेलोसिटी v वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ p वेक्टर। यहाँ तक सब ठीक है बच्चों, फॉलो किया आपने? इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो प्लीज। तब तक मैं जो नोट है जो हिंट है उसे ऐसे सेपरेट ही कर दूं सो दैट आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो कि क्या सॉल्व करना है और क्या समझने के लिए हम लिख रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, और हम जानते हैं एल वेक्टर इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, तो पहले जो भी होगा आर वेक्टर वाले टर्म्स आएंगे, बाद में पी वेक्टर वाले या फिर कोई और टर्म्स बच्चों, लेकिन पहले आर वेक्टर वाले टर्म्स आने जरूरी है पहले। सो वी गॉट दिस dl by dt बच्चों, वी गॉट दिस dl by dt यानी dl वेक्टर by dt is equals to students r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर प्लस बच्चों v वेक्टर as it is क्रॉस प्रोडक्ट with, now this is p वेक्टर बच्चों, linear velocity p वेक्टर, can I call it as mass into velocity guys, linear velocity p वेक्टर, linear velocity p वेक्टर, mass into velocity, ब्रैकेट बनाइए बच्चों यहाँ पर, so this can be treated as r vector cross f vector बच्चों, plus you can do one thing, you can take v vector common बच्चों, नहीं आप एक काम करिए, आप जो स्केलर है उसे बाहर ले लो ना बेटा, m बाहर ले लो, so ब्रैकेट में what you are getting now, v vector cross v vector, बच्चा लोग टेल मी r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर क्या होगा, पढ़ा था ना आपने, डेरिवेशन भी तो किया है बच्चों इसका 2 or 3 sessions ago, right? So dl by dt will be r vector cross f vector, this will be tau vector, torque vector tau vector plus बच्चों m times of, students can I say v vector cross v vector will give you magnitude of first vector into magnitude of second vector which is vv multiplied by cross product है ना बच्चों, so आपको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में साइन थीटा लेना है, थीटा विल बी 0 डिग्री, ऑब्वियस ना बेटा, बिकॉज v वेक्टर इज पैरेलल टू v वेक्टर, सो थीटा विल बी 0 डिग्री, साइन 0 मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिल जाएगा 0, सो स्टूडेंट्स वी आर गेटिंग दिस नाउ, dl by dt मतलब rate of change of angular momentum with time will be equals to torque plus 0 that will give you torque itself बच्चों, ये लीजिए, इतना करिए बच्चों, मैं आपके लिए 10 सेकेंड्स वेट करूं फिर आगे ले जाऊं मैं आपको, रेडी हो जाइए 10 सेकेंड्स फिर आगे बच्चों। सो स्टूडेंट्स टेल मी वन थिंग, ये हमने आपको पूरा प्रूफ करवाया अबाउट एंगुलर मोमेंटम, क्या हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहले से दैट फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, फॉर ट्रांसलेटरी मोशन फोर्स यानी एफ वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो एफ वेक्टर को हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी dp बाई dt लिख सकते हैं, ऑलराइट एफ वेक्टर इज dp बाई dt बच्चों, एफ वेक्टर इज dp बाई dt। सो आप मुझे बताएंगे स्टूडेंट्स फॉर रोटेशनल मोशन स्टोरी कैसे चेंज होगा, व्हाट यू कैन कमेंट अबाउट रोटेशनल मोशन, फोर्स will be replaced by torque बच्चों, am I right students? ट्रांसलेटरी मोशन आपने कैसे फोर्स लिखा है, फॉर रोटेशनल मोशन आप टॉर्क लिख लो ना बेटा, टाउ वेक्टर, राइट? नाउ दिस इज इक्वल्स टू बच्चों राइट हैंड साइड देखिए ना dp by dt,
फॉर रोटेशनल मोशन राइट हैंड साइड क्या होगा, इट विल बी dl by dt. लेट मी रिमाइंड यू स्टूडेंट्स, वही तो प्रूफ करवाया हमने आपको, ये तो बेटा चेक कर लो, dl by dt is tau vector, important for you. कैसे प्रूफ होगा, वो प्रूफ हमने आपके साथ कन्वे किया बच्चों, समझा आपको? बट अगर आप लॉजिकली सोचते तो भी आपका काम चल सकता था, ठीक है। बट अभी जो कॉन्सेप्ट हमें आपके साथ शेयर करना है ना स्टूडेंट्स, इसके लिए प्रूफ करवाना जरूरी था। फॉर दैट 100% सेटिस्फैक्शन चाहिए ना बच्चों आपको, इसीलिए हमने पूरा प्रूफ कर दिया। टाउ वेक्टर इज dl by dt बच्चों, टाउ वेक्टर इज dl by dt, ठीक है। चलो अभी हम आपको स्टूडेंट्स नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे ले जा रहे हैं। सो वी हैव दिस फॉर्मूला नाउ, tau vector for rotational motion, we have tau vector is equals to dl vector by dt. So torque is basically rate of change of angular momentum with respect to time. Torque बच्चों, torque basically क्या होगा, rate of change of angular momentum with time. Okay. अब इसको ना स्टूडेंट्स मैं आगे सॉल्व करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा, इसको मैं आगे सॉल्व करने जा रहा हूं। Students, in case external torque is zero, can I say like this? If external torque is zero, in that case, I think dl vector by dt is zero. Now you have to just follow simple derivative rule. Students, if you are having derivative of some term is equals to zero, let me repeat this. If you are having guys derivative of some term, some single term is equals to zero, then obviously that single term should be a constant, isn't it? क्योंकि बच्चों when constant is alone आप उसका डेरिवेटिव लोगे ना तो आपको जीरो मिलेगा, राइट। सो व्हेन कांस्टेंट इज अलोन इट्स डेरिवेटिव इज जीरो, और देखो ना बेटा डेरिवेटिव ही तो जीरो आ रहा है। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क dl by dt is zero बच्चों, सही है, dl by dt is zero, राइट। सो राइट हैंड साइड इज जीरो, लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव लिया है, सो फॉर श्योर आपका ये जो एल वेक्टर है ना बच्चों वो कांस्टेंट होगा, आप खुद क्रॉस चेक कर लीजिए। इफ एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट देन ओनली द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विल गिव यू जीरो ना बेटा। ओके, सो स्टूडेंट्स कैन आई से लाइक दिस, एल वेक्टर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का मतलब हुआ summation of initial angular momentum and summation of final angular momentum will be same बच्चों। इसका मतलब ये हुआ, हेंस करके मैं आपको लिखवा देता हूं बेटा, हेंस angular momentum, right? Angular momentum denoted by L vector is conserved. Angular momentum students मतलब L vector is conserved in the absence of external unbalanced torque. External बच्चों unbalanced torque. Is it fine बच्चों? स्टेटमेंट समझा आपको? when tau is zero, then only dl by dt will be zero, then only हम confidence के साथ बोल पाएंगे L is a constant, right? So torque should be zero. And what is tau actually? It is external torque, external unbalanced torque. वही लिखा है बच्चों आपने स्टेटमेंट में, देख लीजिए। Angular momentum यानी L vector is remaining constant बच्चों, L vector is remaining conserved in the absence of एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क। टॉर्क अगर आप चाहे तो अपने रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं टाउ वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसे कहा जाता है, ये जो स्टेटमेंट अभी भी आपने देखा ना स्टूडेंट्स, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बच्चों। This is for you, law of conservation of angular momentum students। तो ये सबसे पहले समेशन के फॉर्म में जो हमने लिखा बच्चों, ये हो गया उसका मैथमेटिकल फॉर्म। एंड उसके बाद हमने आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया रिलेटेड टू
law of conservation of angular momentum. Now we can do one thing. हम उसके थोड़े से एप्लीकेशन समझने को ट्राई करें बच्चों. एंगुलर मोमेंटम को हम डे टू डे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज यूजफुल फॉर बैले डांसर्स बच्चों. सो फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर law of conservation of angular momentum is used by ballet dancer. ठीक है, थोड़ा इसको स्टेप वाइज करेंगे स्टूडेंट्स. कैन आई से लाइक दिस, dancer takes, if those ballet dancer, right, takes rounds of smaller radius, एंड बैले डांसर ऑलवेज बच्चों ऐसे डांस नहीं करते, राइट. वो अपने जो हाथ है उसे बाहर निकालते हैं. ओके, तो बीच बीच में एक और स्टेप परफॉर्म किया जा सकता है. डांसर आउट स्ट्रेच देयर legs and arms. लुक साइंटिफिक बच्चों, राइट. यस, सो फर्स्ट स्टेप में बच्चों बैले डांसर ने क्या किया, बैले डांसर टेक्स राउंड्स ऑफ स्मॉलर रेडियस. अच्छा, तो सर इसका फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्मॉलर रेडियस while performing rotational motion, smaller radius, right, this will give you smaller moment of inertia. agree बच्चों, smaller moment of inertia because radius कम है ना बेटा. ओके, सो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, can't I say ओमेगा विल इंक्रीज बच्चों. दैट मीन्स रोटेशनल स्पीड बढ़ेगा बच्चों. सो बैले डांसर ये तरीका यूज करके अपने रोटेशन का जो स्पीड है उसे इंक्रीज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स आई विल गिव यू हिंट, सुनो मेरी बात सुनो. अभी अभी हमने आपके साथ एक पॉइंट शेयर किया, याद है, रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. हमने क्या कहा आपसे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लेट्स से L1 एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज लेट्स से L2. ओके, चलिए और इजी कर दे बच्चों, और इजी कर देते. डोंट वरी अबाउट 1 and 2, राइट. स्टूडेंट्स हमने आपसे क्या कहा ये तो याद है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के स्टेटमेंट में हमने आपसे कहा, अंडर द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क, under the absence of external unbalanced torque, angular momentum will remain constant. agree बच्चों. अब एंगुलर मोमेंटम L का फॉर्मूला तो I ओमेगा होता है ना स्टूडेंट्स, राइट. एंगुलर मोमेंटम L is equals to I ओमेगा. so I ओमेगा is remaining constant. ठीक है ना बच्चों, angular momentum L is a constant. what is L? angular momentum I ओमेगा. so I ओमेगा will remain constant. बच्चों अभी आप खुद देखिए ना, आई एंड ओमेगा का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट है. हम जानते हैं ना स्टूडेंट्स, जब दो फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है तो उनमें जो रिलेशन है वो इनवर्स होगा ना स्टूडेंट्स. सो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई. अग्री. सो बैले डांसर व्हेन दे आर परफॉर्मिंग, व्हेन दे आर टेकिंग स्मॉलर रेडियस, रेडियस इज कंपैरेटिवली लेस, so moment of inertia कम हो जाएगा. when moment of inertia will decrease, omega has to increase, so rotational speed of the dancer will automatically increase. दूसरा ट्राई करते हैं बच्चों. on the other hand, जब डांसर को अपना स्पीड कम करना होता है, ओके, तो वो कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है स्टूडेंट्स. डांसर विल आउटस्ट्रेच देयर लेग्स एंड आर्म्स. इसका फायदा ये होगा स्टूडेंट्स, from the axis of rotation, from the axis of rotation, जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली बढ़ जाएगा. सो आप कह सकते हो न्यूमेरिकली, रेडियस विल इंक्रीज, रेडियस विल इंक्रीज फ्रॉम द रोटेशनल मोशन का एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेडियस विल इंक्रीज. स्टूडेंट्स आप ही बताइए, व्हेन रेडियस विल इंक्रीज व्हाट विल हैपन टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. moment of inertia will be directly proportional to square of radius.
So when radius will increase, I think moment of inertia will also increase. Students, when moment of inertia will increase, omega will, आप बताइए, decrease, right? So when omega will decrease, बच्चों, डांसर का जो रोटेशनल स्पीड है वो कम हो जाएगा ना स्टूडेंट्स. तो आप ऐसे लिखिएगा, रोटेशनल स्पीड ऑफ द डांसर विल डिक्रीज. सो बच्चों, दिस इज द टेक्निक फॉलोड बाय बैले डांसर. उनको अगर अपना रोटेशनल स्पीड अगर इंक्रीज करना होता है तो वो लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट टेकिंग राउंड्स विथ स्मॉलर रेडियस. ऑन द अदर हैंड, इफ बैले डांसर्स आर इंटरेस्टेड इन डिक्रीजिंग द रोटेशनल स्पीड, देन वो अपने हाथ और पैरों को बाहर निकालेंगे बच्चों, सो दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो है उसका डिस्टेंस बढ़ जाए. ओके. So when moment of inertia will decrease, first case rotational speed will increase. And उल्टा बच्चों, when second case you are thinking legs and arms को outstretch किया हुआ है, moment of inertia will increase, because of that rotational speed will decrease. Hint में सब लिख के दिया है बच्चों, ये देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ये फर्स्ट एप्लीकेशन हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, diving in a swimming pool. So students, diving in a swimming pool, when we look at a sportsman doing this stunt, okay, it is a view to watch, right बच्चों? So diving in a swimming pool, ये concept भी application ही होता है students, law of conservation of angular momentum का. तो ये एक्चुअली 3 स्टेप में होगा बच्चों. स्टेप नंबर 1, ओके, ऑन दैट, ऑन द बोर्ड, हाँ बच्चों, ऑन द बोर्ड जो डाइविंग बोर्ड होगा ना, ऑन द बोर्ड हम कह सकते हैं डाइवर स्ट्रेचेस बॉडी. अब जैसे ही वो बोर्ड से ऊपर के तरफ जंप करेंगे, ओके, देन द डाइवर इज गोइंग टू फोल्ड इट्स बॉडी, आई शुड से फोल्ड देयर बॉडी बच्चों. अच्छा, बॉडी को फोल्ड करने का फायदा क्या हुआ बच्चों, सुनो मेरी बात को. बॉडी को फोल्ड किया, सो कहना है से जो एक्चुअली एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस था मास का वो कम हो गया बेटा. सो आर कम हो गया बच्चों. और जब आर कम होगा हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, बिकॉज ऑफ दैट ओमेगा बढ़ेगा ना बेटा. सो रोटेशनल स्पीड जो है वो बढ़ गया. तो सर इसका फायदा क्या होगा बच्चों, इसका फायदा ये होगा दैट डाइवर, ज्यादा रोटेशनल स्पीड है ना बेटा, तो हवा में ज्यादा से ज्यादा राउंड लगा पाएगा. okay, and it will appear further more fascinating to us, right? So diver can complete more rounds in air. okay, and third point जो actually rotational motion related नहीं है, but फिर भी आपको बताना है मुझे, थर्ड स्टेप बच्चों, जब पानी में अंदर वो पहुंचते हैं ना बच्चों डाइवर, सो इमीडिएटली हम कह सकते हैं पानी के सरफेस पे जस्ट पहुंचने के पहले, हाँ, ऊपर से उन्होंने जंप लगा लिया है, उनका बॉडी एन नंबर ऑफ टाइम रोटेट हो चुका है बच्चों. कैसे, रेडियस डिक्रीज करके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिक्रीज करके ओमेगा इंक्रीज हो चुका है. अब बच्चों होगा क्या, ओमेगा बहुत ज्यादा है क्योंकि वो पर्सन ने, वो डाइवर ने अपने बॉडी को फोल्ड किया हुआ है. अब अगर इससे पानी के अंदर वो जंप करते हैं, सो डेफिनेटली ये जो लैंडिंग होगा ना बच्चों, ये काफी रफ होगा, एंड इट इज नॉट अ गुड थिंग, राइट? इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस बच्चों. तो हमें क्या करना है, हमें वापस से ऐसा सोचना है कि जो डाइवर है वो अपना बॉडी वापस से सीधा करेंगे. सो थर्ड स्टेप में क्या होगा ना स्टूडेंट्स, डाइवर जो है वो अपने बॉडी को स्ट्रेच करेंगे बच्चों. इसका फायदा क्या होगा, दिस विल अनेबल स्मूथ एंट्री, कहते हैं ना वैसे बच्चों. जब डाइवर बोर्ड पे थे तो उनका बॉडी कैसा था, स्ट्रेच्ड. जब बोर्ड से उन्होंने अपना पोजीशन चेंज किया, एयर में अपने बॉडी को लिफ्ट किया, वाटर के तरफ आ रहे बेटा,
सो इमीडिएटली आफ्टर लिविंग दैट पर्टिकुलर बोर्ड हम कह सकते हैं डाइवर ने अपने बॉडी को क्या कर दिया बच्चों, अपने बॉडी को कर्ल कर दिया, ऐसा बोलेंगे तो चलेगा बच्चों, कर्ल कर दिया, फोल्ड कर दिया। इसका फायदा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिक्रीज, बिकॉज ऑफ दैट angular speed will increase, and because of that बच्चों, that particular sportsman is able to perform maximum rounds in air. ओके, मैक्सिमम राउंड्स इन एयर हो गए। अब पानी में जब जंप एक्चुअली किया जाएगा तो हमें कैसा स्मूथ एंट्री चाहिए, तो हमें वापस से डाइवर को बोलना पड़ेगा दैट आप अपना बॉडी अभी स्ट्रेच कर लीजिए ऐसे। एंड दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स, ये दोनों जो हमने आपके साथ पॉइंट शेयर किए ना बेटा, नंबर 1 बैले डांसर एंड नंबर 2 डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल, बोथ दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ फिजिक्स बच्चों। आपको समझा बच्चों, व्हाई दिस टू काइंड ऑफ स्पोर्ट, वी कैन से दिस टू काइंड ऑफ स्पोर्ट रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि आपको बहुत ख्याल रखना होता है रोटेशनल स्पीड का स्टूडेंट्स। ओके, फिजिक्स इसमें आपकी हेल्प करेगा अगर आप प्रॉपर तरीके से फिजिक्स को अप्लाई करना जानते हो। सो दीज आर द टू वेरी कॉमन एप्लीकेशंस बच्चों, नंबर 1 बैले डांसर, नंबर 2 diving in a swimming pool by professional divers. These are the two applications for your law of conservation of angular momentum बच्चों, law of conservation of angular momentum. Is it fine बच्चों? आगे बढ़ूं मैं, अभी एक न्यूमेरिकल करवा दूं मैं आपको। You can consider this as a Q for question. This is Q. It goes like this, students. A ballet dancer spins about a vertical axis at 90 RPM with arms outstretched. Then with the arms folded, the moment of inertia about the same axis of rotation changes to 75%. Calculate new speed of rotation. Yes, स्टार्ट करते हैं बच्चों साथ में इसको। A ballet dancer spins about vertical axis at 90 RPM. So data students, frequency N1 हम कंसीडर कर सकते हैं 90 RPM। बच्चों इस टाइप के सम्स में हम यूजुअली कन्वर्जन नहीं करते हैं, क्योंकि जो यूनिट N1 का होगा वही आपको N2 का मिल जाएगा। बट फिर भी एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद वी मे चेंज अवर थॉट। सो फ्रीक्वेंसी N1 यानी इनिशियल फ्रीक्वेंसी बच्चों, जब बैले डांसर के जो हाथ है ना बेटा वो बाहर है, देखा आपने, आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड। सो यू नो द स्टोरी रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आगे सुनते बेटा, विद द आर्म्स फोल्डेड, अब आर्म्स को फोल्ड कर लिया तो आप समझ गए बेटा दैट आर हैज डिक्रीज्ड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज
यस बच्चों, आर कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा एक सेकेंड दीजिए बच्चों मुझे, इफ द आर्म्स आर फोल्डेड, हाँ बराबर है, रेडियस कम हो गया बेटा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, बराबर है। आगे सुनते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होते होते कितना हो गया बच्चों, अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन it changes to 75% students. So the new moment of inertia I2, or you say the final moment of inertia I2 is 75%। थोड़ा स्टेप वाइज दिखाते हैं बच्चों हम आपको। I2 will be 75% of I1 बेटा, समझा स्टूडेंट्स आपको। फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यू कॉल इट एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आफ्टर फोल्डिंग द हैंड्स I2 is 75% एज कंपेयर टू ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 जब हाथ आउटस्ट्रेच थे। सो I2 विल बी स्टूडेंट्स 75% यानी 75 डिवाइड बाय 100, यानी I2 विल बी 0.75 टाइम्स ऑफ I1 बच्चों। I2 will be 0.75 times of I1, यहाँ तक ठीक है। N1 आपको पता है स्टूडेंट्स। I think you have to calculate the new speed of rotation। अब देखिए ना स्टूडेंट्स, आपको जो स्पीड एक्चुअली दिया है रोटेशन का, that is given in terms of frequency। ठीक है ना बेटा, 90 RPM। तो आप क्या करिए ना, आप रिक्वायरमेंट में लिखिए N2 is क्वेश्चन मार्क। So using N1 ना स्टूडेंट्स, using N1 you have to determine N2। I repeat, N1 का यूज करके बच्चों आपको N2 डिटरमाइन करना है, ठीक है। एक काम करें स्टूडेंट्स, हम जानते हैं टू डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैलिड आंसर वाला कॉन्सेप्ट है। सो टू डिफरेंट आपको एंगुलर स्पीड मिलेंगे, एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। So I am going to use now solution students। Step number 1, we are starting like this, law of conservation। We will start like this बच्चों, law of conservation of angular momentum students। using law of conservation of angular momentum मैं कह सकता हूँ that initial angular momentum L1 and final angular momentum L2 are the same। ठीक है बच्चों, L1 is equals to L2, initial angular momentum, final angular momentum will be the same। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझा इनिशियल फाइनल मतलब मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँ। हेलो हेलो बच्चों, L1 में साइड में नोट दे दूं बच्चों आपको, देखिए L1 व्हाट आई एम कंसीडरिंग इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, या फिर आप कह सकते हो L1 को एंगुलर मोमेंटम। ओके, व्हेन आर्म्स आर आउटस्ट्रेच, जब हाथ बाहर थे बेटा। ओके, and then we have L2 beta, L2 is also angular momentum। this is like final angular momentum when arms are folded। सब ठीक बच्चों। so L1 is considered as initial angular momentum while L2 is considered as final angular momentum। ठीक है ना बच्चों, मैं आगे बढ़ू, मतलब L1 is equals to L2 as per law of conservation of angular momentum। स्टूडेंट्स मुझे बताइए एंगुलर मोमेंटम L का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी I ओमेगा। सो L1 विल बी I1 ओमेगा 1, दैट इज इक्वल्स टू बच्चों फाइनल एंगुलर मोमेंटम मतलब L2। एंगुलर मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला बच्चों I ओमेगा, final angular momentum it is L2, right? So it will be I2 omega 2। so using law of conservation of angular momentum हम कह सकते हैं that L1 is equals to L2। L1 मतलब I1 omega 1, what is L2 बच्चों, I2 omega 2। इक्वेट करने का टाइम है, so we can say like this, I1, what is omega 1 students, can I say 2 pi f1, that is equals to I2 final moment of inertia I2 multiplied by what is omega 2 बेटा, 2 pi f2। स्टूडेंट्स मैं हाँ आपको फ्रीक्वेंसी f लिखवाता आया हूँ ना अब तक,
तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, डेटा में हम जाके थोड़े से मॉडिफिकेशन कर देंगे। डेटा में जाके बच्चों हम इनिशियल फ्रीक्वेंसी को कंसीडर कर लेंगे f1, ठीक है ना। ओके, मतलब आई एम जस्ट रिप्लेसिंग दैट n बाई f सो दैट आपको वही डिनोशन देखने मिले जो मैंने अब तक आपको यूज करवाया है इन अवर एंटायर रोटेशनल डायनामिक्स। f फॉर फ्रीक्वेंसी वी हैव यूज्ड, राइट, f फॉर फ्रीक्वेंसी। So I1 omega 1 is equals to I2 omega 2. So I1, what is omega 1? 2 pi f1 is equals to I2 into what is omega 2 बच्चों? 2 pi f2. 2 pi 2 pi cancel. So you can say I1 into f1 is equals to बच्चों I2 into f2, ठीक है ना। I1 f1 is equals to I2 f2. You keep I1 as it is बच्चों, ठीक है, into f1. f1 का वैल्यू आप जानते हो, that is 90 rpm, revolutions per minute, that is equals to I2. I2 is, as per the data students, I2 will be 0.75 times of I1. I2 will be 0.75 times of I1 multiplied by f2. Do we have f2? No, we don't. So you keep f2 as it is, वो आपका requirement है। नाउ स्टूडेंट्स आप देखिए ना, जो I2 है वो कैंसिल कर दीजिए आप, सॉरी जो I1 है बच्चों, सॉरी जो I1 है वो आप कैंसिल कर लीजिए। सो यू विल बी गेटिंग 90 इज इक्वल्स टू 0.75 multiplied by f2. That means f2 students, final frequency f2 will be 90 divided by 0.75. So 90 divided by, now 0.75 is nothing but 3/4 बेटा, तो 4 को आप ऊपर ट्रांसफर कर लीजिए, ठीक है ना बेटा। सॉल्व करो इसको बच्चों, 3 into 30 will give you 90. So 30 multiplied by 4, this will give you 120 guys. So f2 is equals to 120. Put same unit please बच्चों, 120 rp। यहाँ पर आपका जो न्यूमेरिकल है वो फिनिश हुआ बच्चों, लेकिन मुझे एक और चीज आपके साथ शेयर करना था, नोट। स्टूडेंट्स आपने नोट किया, जब भी व्हेन आर्म्स वेर आउटस्ट्रेच्ड बच्चों, इनिशियल फ्रीक्वेंसी वाज f1, ओके, इनिशियल फ्रीक्वेंसी वाज f1। जब भी आर्म्स को फोल्ड किया गया बच्चों, आर्म्स आर फोल्डेड, by the valid answer, arms are folded, so r will decrease, moment of inertia will decrease, because of that omega will increase na beta, by using law of conservation of angular momentum। short में लिखा हमने बच्चों LOCOAM। so by using students, by using law of conservation of angular momentum, by using law of conservation of angular momentum, when moment of inertia will decrease after arms are been folded, omega will increase। अब कुछ चेक कर लो ना बेटा, इनिशियल फ्रीक्वेंसी वाज 90 आरपीएम ना, और फाइनली आपको जो फ्रीक्वेंसी मिल रहा है वो तो देखिए काफी ज्यादा है बेटा, इट्स 120 आरपीएम। सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ रोटेशन का, बिकॉज एंगुलर स्पीड इंक्रीज हुआ, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ, बिकॉज रेडियस डिक्रीज हुआ, बिकॉज आर्म्स को फोल्ड कर लिए गए। So this is like an application related numerical based upon law of conservation of angular momentum. ठीक है students? So the next time बच्चों when we are meeting, I think we will be getting more numericals based upon law of conservation of angular momentum. So आज का session students हम यहाँ पे wind up करेंगे। I hope you enjoyed the session. Bye बच्चों।